قرآن نے عورت کو جو دیا وہ آج تک کسی نے نہیں دیا۔ چلتے ہیں اس دور میں جسے تاریخ نے دور جاہلیت کہا۔ عرب کا صحرا، لمبی لمبی ریت کی لہریں، تپتا ہوا سورج، اور اس تپتی دھوپ میں ایک باپ اپنی نومولود بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے صحرا کی طرف چل رہا ہے۔ بیٹی کی آنکھیں ابھی دنیا دیکھنا سیکھ رہی ہیں، اس کی انگلیاں ابھی باپ کی انگلی تھامنا سیکھ رہی ہیں، اس کے ہونٹ ابھی مسکرانا سیکھ رہے ہیں، اور باپ گڑھا کھود رہا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، کیونکہ بیٹی اس دور میں عزت پر بوجھ تھی، فاقے کا سبب تھی، ذلت کی علامت تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، اور آج 1400 سال بعد WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں 71% شادی شدہ عورتیں ابھی بھی گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ 71%۔ یہ ڈیٹا ایک چیخ ہے، وہ چیخ جو اس نومولود بچی کی چیخ سے آج بھی ملتی ہے، آج بھی گونجتی ہے، آج بھی ہم سے سوال کرتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ صرف ایک بچی کی کہانی نہیں، یہ پوری عورت ذات کی کہانی ہے۔ دور جاہلیت میں عورت خریدی اور بیچی جاتی تھی، وراثت میں ملکیت کی طرح منتقل ہوتی تھی۔ اس کی رائے کی کوئی قیمت نہ تھی، اس کے درد کی کوئی دوا نہ تھی، اس کے خواب کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ وہ عورت جسے اللہ نے محبت کا سرچشمہ بنایا، جسے اللہ نے رحمت کا پیکر بنایا، جسے اللہ نے نسل انسانی کی امانت بنایا، وہ صحرا کی ریت میں زندہ دفن تھی۔ اور پھر غار حرا میں ایک نور اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اس ایک لفظ نے، اقرا پڑھو، پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ قرآن نازل ہوا اور صحرا کی وہ بیٹی جو ریت میں دفن تھی زمین سے باہر آئی۔ قرآن نے کہا وہ بیٹی رحمت ہے، وہ بیٹی جنت کا دروازہ ہے، نعمت ہے۔ قرآن نے کہا عورت کے حقوق ہیں، عورت کی وراثت ہے، عورت کی ملکیت ہے، عورت کی رائے ہے، عورت کا علم ہے، عورت کا مقام ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، دستور کے مطابق۔ لیکن قرآن نے صرف حقوق نہیں دیے، قرآن نے عورت کو وہ مقام دیا جو آج تک دنیا کا کوئی قانون، کوئی تحریک، کوئی انقلاب نہیں دے سکا۔ قرآن نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سوچیں، جنت جس کے لیے انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، جس کے لیے انسان صبح و شام کوشش کرتا ہے، وہ جنت اللہ نے ایک عورت کے قدموں تلے رکھ دی۔ یہ ہے قرآن کا انقلاب، یہ ہے وہ لمحہ جب صحرا کی بیٹی دنیا کی سب سے عظیم ہستی بن گئی۔ اور پھر شروع ہوا اسلام کا وہ سنہرا دور جب قرآنی عورت نے دنیا کو بتایا کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی دولت، اپنی توانائی، اپنی محبت اسلام کی راہ میں لگا دیا، اور تاریخ نے انہیں ام المومنین کا لقب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، یہ لقب کسی ملکہ کو نہیں ملا، کسی فلسفی کو نہیں ملا، یہ لقب ملا اس عورت کو جو قرآن سے جڑی تھی، جو اللہ سے جڑی تھی، حضرت
आयशा रजी अल्लाह अन्हा, जिनके इल्म के सामने बड़े बड़े सहाबा सर झुकाते थे, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना आधा दीन आयशा से सीखो। एक औरत जिससे आधा दीन सीखने का हुक्म था, ये है कुरान की औरत, ये है इस्लाम की औरत। इकबाल ने क्या खूब कहा है, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। औरत के वजूद से ही कायनात में रंग है और इसी के साथ से जिंदगी में गहराई है। ये वो दौर था जब मुसलमान औरत सहरा की रेत से उठकर तारीख की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ी थी, जब इसका इल्म दुनिया के इल्म का सर चश्मा था, जब इसकी आवाज दुनिया की सबसे ताकतवर आवाज थी, जब इसका घर जन्नत का नमूना था, जब इसकी गोद दुनिया के अजीम तरीन इंसानों की पहली दरसगाह थी। ये वो दौर था जब मुसलमान औरत कुरान के साये में थी और वो साया दुनिया की तमाम धूप से उसे महफूज रखता था। और फिर एक दिन वो साया छूटने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम, एक एक करके। मगरिब से एक आवाज आई और इस आवाज ने कहा, तुम आजाद हो, तुम्हारा कुरान तुम्हें महदूद करता है, तुम्हारा हिजाब तुम्हारी कैद है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा घर तुम्हारी जेल है। आओ हमारे साथ आओ, यहाँ आजादी है, यहाँ रोशनी है, यहाँ जिंदगी है। और मुसलमान औरत जो सदियों से कुरान के साये में थी, इस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुई। इसने सोचा, शायद ये सच है, शायद वहाँ रोशनी है, शायद वहाँ वाकई आजादी है। और वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान के साये से बाहर निकलने लगी। क्या तुमने कभी सोचा कि मगरिबी औरत की जिंदगी जो तुम्हें चमकती दमकती नजर आती है, इस चमक दमक के पीछे कितना अंधेरा है। आज मगरिब की औरत वो हर हक रखती है जो मर्द रखता है, वो हर जगह जा सकती है, वो हर काम कर सकती है, लेकिन आज मगरिब में हर तीसरी औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार है। आज मगरिब में औरत अकेले बच्चे पाल रही है बगैर किसी सहारे के। आज मगरिब में औरत सुबह से शाम तक काम करती है और घर आकर फिर काम करती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी इसी की है और बाहर की जिम्मेदारी भी इसी की है। औरत को आजादी के नाम पर एक नई गुलामी का तोहफा मिला, जहां वो हर बोझ खुद उठाए, हर दर्द खुद सहे और मुस्कुराती रहे, क्योंकि वो आजाद है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो इंडिपेंडेंट है। ये आजादी है या एक नए सहरा की तपती धूप है? और इधर मुसलमान औरत इस चमकती दमकती तस्वीर को देख रही है और उसे ये नहीं पता कि ये तस्वीर एक खूबसूरत धोखा है, कि इस तस्वीर के पीछे एक औरत है जो थकी है, जो अकेली है, जो दर्द में है, लेकिन मुस्कुरा रही है, क्योंकि मगरिबी आजादी ने इसे रोने की इजाजत भी नहीं दी। सादी शिराजी ने कहा, बनी आदम अज़ाए यक दीगरन के दर आफरीनश ज़यक गौहरन। तमाम इंसान एक जिस्म के अज़ा हैं, क्योंकि वो एक ही असल से पैदा हुए हैं, और जब एक अज़ो दर्द में हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। आज मुसलमान औरत दर्द में है और पूरी उम्मत बेचैन है, क्योंकि हम एक ही जिस्म हैं, एक ही उम्मत हैं। आज की मुसलमान औरत अगर गौर से देखे तो वो पाएगी कि वो वापस इसी दौर में आ गई है जहां से कुरान ने इसे निकाला था।
दौरे जाहिलियत में जब औरत को मर्दों की मिल्कियत समझा जाता था, आज औरत को इंडस्ट्री की मिल्कियत समझा जाता है। इसका जिस्म इश्तहारों में बिकता है, इसकी खूबसूरती प्रोडक्ट्स बेचने का जरिया है। दौरे जाहिलियत में औरत की कोई शनाख्त नहीं थी, आज औरत की शनाख्त इसके लाइक्स हैं, इसके फॉलोवर्स हैं, इसकी स्क्रीन पे नजर आने वाली तस्वीर है। ये नई जाहिलियत है, ये वही सहरा है, बस रेत का रंग बदल गया है, बस धूप का नाम बदल गया है। मिर्जा गालिब ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। आज मुसलमान औरतों की ख्वाहिशें हजार हैं, लेकिन सुकून एक भी नहीं, क्योंकि जिस सरचश्मे से सुकून मिलता था, इसे इसने खुद अपने हाथों से छोड़ दिया। ऐ मेरी बहनों, मैं तुमसे नाराज नहीं, मैं तुम्हें मुजरिम नहीं कहती, मैं तुम्हें कमजोर नहीं कहती, मैं तुम्हारी वो हम जिन्स हूँ जो तुम्हारा दर्द महसूस करती है, जो तुम्हारी थकान देखती है, जो तुम्हारी आंखों में सवाल देखती है, जो तुम किसी से नहीं पूछ सकती तुमसे ये गलती हुई क्योंकि किसी ने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि जो चमक तुम्हें मगरिब में नजर आती है वो आग की चमक है, नूर की नहीं। तुम्हें बताया नहीं कि जो आजादी तुम्हें वहां नजर आती है वो बेसहारा होने का दूसरा नाम है। तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे पास जो कुरान है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो दुनिया का सबसे बड़ा तहफ्फुज है, वो दुनिया की सबसे बड़ी आजादी है। रूमी ने कहा, बशनु इन्नी चू शिकायत मी कुनद अज जदाईहा हिकायत मी कुनद। सुनो इस बांसुरी को जो शिकायत कर रही है, वो जुदाइयों की दास्तान सुना रही है। आज तुम्हारी रूह वही बांसुरी है जो कुरान से जुदा होकर शिकायत कर रही है, दर्द में है, बेचैन है और वापस लौटना चाहती है, लेकिन रास्ता भूल गई है। मैं आज तुम्हें वो रास्ता दिखाने आई हूँ। वापसी का वक्त आ गया है। वो कुरान जो तुम्हारे घर में किसी ऊंची जगह पर रखा है सिर्फ तिलावत के लिए, सिर्फ ईसाल सवाब के लिए, इसे उतारो, इसे खोलो, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, कुरान जिंदगी गुजारने का मंशूर है, कुरान औरत की अजमत का ऐलान है, कुरान तुम्हारी वापसी का रास्ता है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान इस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। सबसे सीधा रास्ता आज की भटकती हुई औरत के लिए यही कुरान है और सिर्फ यही कुरान है। मगरिब के पास तुम्हारे लिए हुकूक के नारे हैं, लेकिन कुरान के पास तुम्हारे लिए हुकूक के साथ इज्जत भी है, तहफ्फुज भी है, मोहब्बत भी है और आखिरत का अजर भी है। यूएन विमेन के पास तुम्हारे लिए डिक्लेरेशंस हैं, लेकिन कुरान के पास तुम्हारे लिए अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। आज इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक काम करो, कुरान उठाओ और इससे ये पूछो कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, और कुरान तुम्हें जवाब देगा, क्योंकि कुरान ने हमेशा बिनते हव्वा को जवाब दिया, हमेशा बिनते हव्वा की हिफाजत की, सहरा की रेत से उठाया, वो सहरा की बेटी जो 1400 साल पहले कुरान की आवाज पर रेत से बाहर आई, आज फिर इसी आवाज की मुंतजिर है। आज फिर वही आवाज आ रही है, इक़रा, पढ़ो, उठो, वापस आओ अपने कुरान की तरफ, अपनी अजमत की तरफ, अपने मुकाम की तरफ, अपनी असल पहचान की तरफ। इस वीडियो को
अपनी माँ को भेजें, अपनी बहन को भेजें, अपनी बेटी को भेजें, अपनी हर इस सहेली को भेजें जो आज सहरा की तपती धूप में है और जिसे ये नहीं पता कि कुरान का साया अभी भी मौजूद है, अभी भी मुंतजिर है, अभी भी पुकार रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। और कमेंट्स में बताएं कि आपने भी कभी महसूस किया कि कुरान की दूरी ने आपसे कुछ छीन लिया। और अगली वीडियो में वो एक कुरानी हक जो समाज आपको नहीं बताएगा, जो माशरा आपको नहीं बताएगा और जिसे सिर्फ कुरान ने बताया, क्योंकि वो सहरा की बेटी जिसे कुरान ने तपती रेत के गड्ढे से 1400 साल पहले बाहर निकाला था, आज भी जिंदा है, आज भी ताकतवर है, आज भी अजीम है। बस उसे अपना कुरान वापस चाहिए।